going to be an interactive session wherein I am not only going to take the lecture, but you're also going to give me your feedback. And let us see how you work with this session. Now, as you all know, that in IELTS writing, there are a number of types of essays. I'm not going to discuss all these types of essays, but I'm going to take one very specific type of essays, that is question-based essays. Now, before we jump into the question-based essays, I hope you all know that there are usually 5 to 6 types of essays. The first one being discuss and give your opinion. There are 2 types of essays in this. You may only be required to discuss, and in the second type, you may be required to discuss and give your opinion as well. The second type of essay is to what extent do you agree or disagree. Then comes problems and solutions. We can also have essays like causes and effects. One more thing, in problems and solutions, you may be required to write only the solutions. Then there are advantages and disadvantages, and there's also one more type in advantages and disadvantages. It is advantages, disadvantages, and give your opinion. And finally, there is also one type of essay that we call as questions based essay, wherein the direct questions are being asked to you and you are required to write an essay based on this. So today our entire highlight is going to be on question based essays. Now this session is going to be helping you out to write an effective essay, and most importantly, question based essays. Question based essays, in IELTS. Now, first and the foremost thing, you don't need to have any prior knowledge. First, I recommend people to ask me questions only at the end of the lecture, unless until my voice is inaudible. If my voice is audible, I request each and every one of you to raise any questions probably at the end of the session, because when you raise a question, there is a pop-up that comes, and that pop-up disturbs me. So I would recommend, if it is possible, you can always raise the question at the end of the lecture. I hope this is comfortable for everybody. Okay, yeah. Now, the most important thing that I would like to tell you is that how to write a question-based essays. Now, many of you might not be knowing that in recent trend of IELTS, we have found out that more and more essays are being asked, which are based directly on the questions. Now, and students face lots of difficulties in writing this type of essays. Now, let me give you first of all, before we jump on to the question-based essays, uh, usually this is how you write a normal introduction in any of the essays. So if I talk about introduction, you usually write 3 sentences. The first one is the paraphrasing, wherein you are reusing or restating the statement of the essay or the essay in your own words. You utilize different paraphrasing techniques like change of words by using proper synonyms. You change the form of the word. You may change active into passive, or you may convert passive from active. So there are various methods of paraphrasing. Again, this is a different lecture altogether, but you usually, the basic concept of paraphrasing is आप उसी चीज को दोहराते हो लेकिन दूसरी लैंग्वेज में. The second statement or the second sentence that comes in introduction is a thesis statement, wherein you are giving your own opinion. आप इस चीज से किस हद तक सहमत हो, आप क्या चाहते हो. And finally, there is an outline wherein it is not mandatory. Means writing an outline is not compulsory. It is not compulsory to write an outline. Hello, is my voice audible, everybody? Yes. Yes, is my voice audible? Okay, then yeah, Pooja, you will be required to check your voice, check your headsets from your end. Anyway, thank you. So this is how exactly you are writing an essay. So for example, the introduction should be to write, you have to have 3 sentences in the introduction. The first one being the paraphrasing. The second one is going to be the thesis statement, wherein you give your opinion, and finally the outline. Now, I want everybody to understand this very importantly, that this is how you write a normal introduction. But let me explain you first and the foremost thing, that this is how the introduction has to be written. So let me take a small essay to help you out. The essay is, the computers are being used more and more in education. Some people say that this is a positive trend, while others argue that it is leading to negative consequences. Consequences का मतलब होता है परिणाम. Discuss both sides of this argument and then give your own opinion. It's a normal essay. इसको आप बोलेंगे discuss and give your opinion वाला essay है, जिसमें आपको अपना अभिप्राय भी देना है.
Now the red one, the first line, I have put that into 3 colors. The red one is basically the paraphrasing of this entire essay topic. So if you read, it is often argued that ever increasing use of technology such as tablets and laptops. So instead of computers, what I did is we utilize the synonym of computers, or similar language of computers, that is tablets and laptops. Why would you want to utilize the same language in the classroom? Is a positive development. So I repeat, it is often argued that ever increasing use of technology such as tablets and laptops in the classroom is a positive development. Wills का मतलब होता है while. Others, while is more informal, whilst is more formal. So you can utilize whilst. Others disagree and think it will lead to adverse ramifications. Ramifications का मतलब होता है परिणाम, और adverse का मतलब होता है विपरीत. विपरीत मतलब opposite, contradictory. सो काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं कि लैपटॉप्स और टैबलेट्स को क्लासरूम में अगर अगर उपयोग किया जाए तो वो परिणाम जो है पॉजिटिव लाता है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं इससे गंभीर परिणाम आ सकते हैं. सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी डिड इज वी हैव paraphrased the entire essay statement. Green one, the green sentence is the thesis statement wherein I am giving my own opinion. I strongly believe that usage of computers in the education field is a positive phenomenon. So I am giving my opinion. Is it getting clear that I believe that it is a positive phenomenon? And the sentence written in blue, the green one is a thesis statement, and the blue one is an outline of the essay. The purpose of this essay is to analyze both sides of the argument, and then I will explain my own perspective. Now, let me tell you, it is not compulsory for you to write this statement. The sentence which is written in blue color is not compulsory for you to write. You only need to write 2 sentences, the one in red and the one in green. You may write the third one, the blue one, but it is not compulsory. The basic reason of explaining this to you is to make you understand that this is the way a normal essay introduction is written. But the problem starts when the essay is a question-based essay. Now I'm giving a small example. This is a question-based essay wherein direct questions are asked. In some parts of the world, it is becoming popular to research the histories of one's own family. काफ़ी दुनिया के काफ़ी हिस्सों में लोग अपनी ही हिस्ट्री रिसर्च करते हैं, जैसे कि मेरे पिताजी कौन थे, मेरे दादाजी कौन थे, उनके परदादा कौन थे, उनके दादा कौन थे, something like that. And then there is a question mark, a question prompt. Now this is what we call as a prompt. Why might people want to do this? लोग ऐसा क्यों करना चाहेंगे? And is it a positive or a negative development? So you can directly see that there are 2 questions being asked. This one, why might people want to do this? Number one. And is it a positive or a negative development? ये एक मतलब this is a question based essay. Let me take a second example. Some people think it would be a good idea for schools to teach every young person how to be a good parent. मतलब काफी लोग ऐसा मानते हैं कि स्कूल्स में यंग बच्चों को पढ़ाया जाए कि अच्छा पेरेंट कैसे बना जाए. So there are 2 questions. Do you agree or disagree with this opinion? Number one, describe the skills a person needs to be a good parent. So I just wanted to explain you कि देखिए इसको आप बोलेंगे question based essay. Many of you might be new enough not to understand or not may not be knowing what is basically a question based essay. A question based essay is an essay in which direct questions are asked. Now ये भी मुझे ये this entire lecture was not all or not also to explain you कि what are question based essays. मुझे ये समझाना था how you basically write an introduction in a question based essay, and it is one of the most trickiest parts to do. Let me tell you, it is very easy to write an introduction in opinionated essay जिसमें to what extent do you agree or disagree है. डिस्कस वाला जो कोई ऐसे है उस पर भी बहुत ईजी है. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इट इज ऑल्सो वेरी इजी टू राइट एन इंट्रोडक्शन, बट ओनली व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चन बेस्ड ऐसे लाइक दिस, बिकॉज इन अ क्वेश्चन बेस्ड ऐसे राइटिंग एन इंट्रोडक्शन कैन बी अ बिट ट्रिकियर. थोड़ा सा ट्रिकी रहता है. कैसे होता है और उसका टेक्निक समझते हैं पहले. नाउ दिस इज, आई होप दिस इज रीडेबल टू यू. आपको थोड़ा सा ये आई एम जस्ट गिविंग यू अ टेक्निक, हाउ व्हाट एग्जैक्टली व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन राइटिंग एन इंट्रोडक्शन इन दिस क्वेश्चन बेस्ड ऐसे. Now let me explain you. I am reading this sample essay in front of you. शांति से रीड करूंगा. अगर आप मोबाइल्स पे भी है तो भी आपको समझ आ जाएगा.
Many children have access. Access का मतलब होता है availability to the internet and devices like smartphones, even at very young ages. Do you think this is a good trend? A question mark. What rules should children follow related to internet and gadget use? So as you can see, it's a question based essay. Clear? तो पहले तो ये समझ लेते हैं तो उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए. Whenever you have got an essay which is based on questions, let me tell you, I repeat, IELTS में लॉट्स ऑफ एसेज राइट नाउ करंटली अगर हम लोग बात करें, फॉर एग्जांपल मार्च के पहले लॉकडाउन 22 तारीख को हुआ था, उसके पहले तकरीबन वी हैव बीन एनालाइजिंग सिंस लास्ट 4 मंथ्स. तकरीबन नवंबर से हम लोगों ने एनालाइज करना चालू किया. वी हैव फाउंड आउट एक महीने में 4 बार एग्जाम ली जाती है IELTS की, तकरीबन 2 बार क्वेश्चन बेस्ड ऐसे थे. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझे कि क्वेश्चन बेस्ड ऐसे का इंट्रोडक्शन कैसा लिखा जाए, बिकॉज इंट्रोडक्शन प्लेज अ वेरी मैसिव रोल इन डिसाइडिंग योर आउटकम ऑफ बैंड्स. सो इसको समझिए, शांति से समझिए. पहला, many children, I repeat, many children have access to internet and devices like smartphones, even at a very young age, even at very young ages. Do you think this is a good trend? क्या ये अच्छा ट्रेंड है? मतलब काफी यंग लोगों को आज देखेंगे कि स्मार्टफोन्स, इंटरनेट डिवाइसेस, टैबलेट्स काफी यंग एज पे मिल जाता है. तो पहला सवाल है कि इज दिस अ गुड ट्रेंड, एंड सेकंड इज व्हाट रूल्स शुड चिल्ड्रन फॉलो रिलेटेड टू इंटरनेट एंड गैजेट यूज. दो सवाल है. मतलब दूसरा सवाल ये है कि क्या, अगर फर्ज करो कि अगर वो लोग यूज करते हैं तो क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए उनको जब वो इंटरनेट और गैजेट का इस्तेमाल करते हैं. क्लियर? नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर ऐसे ऐसे टाइप का ऐसे है जिसमें क्वेश्चंस है डायरेक्टली, तो उसको कैसे लिखा जाए. तो जाहिर है कि यू शुड आंसर ईच क्वेश्चन इन द प्रॉम्प्ट इन इट्स ओन बॉडी पैराग्राफ. तो मतलब पहला तो इंट्रोडक्शन होगा, सिंपल सा है. सेकंड, इंट्रोडक्शन में आपको पता है देयर विल बी 2 लाइंस, पैराफ्रेजिंग, थीसिस स्टेटमेंट एंड आउटलाइन. आउटलाइन इज अगेन नॉट कंपल्सरी एज आई टोल्ड यू बिफोर, बट तो पहला इंट्रोडक्शन होगा. सेकंड पैराग्राफ इज गोइंग टू बी आंसरिंग दिस लाइन. ये लाइन आंसर करेगा. दिस इज इट इज गोइंग टू आंसर दिस लाइन. डू यू थिंक दिस इज अ पॉजिटिव गुड ट्रेंड? ये आंसर लाइन को आंसर करेगा. एंड थर्ड, सेकंड बॉडी पैराग्राफ मतलब वैसे ऐसे का थर्ड पैराग्राफ is going to answer this question: what rules should children follow related to internet and gadget use? ये दूसरा क्वेश्चन है. So these two questions are going to be written or explained in two different paragraphs followed by conclusion. So I am not here to explain the format you people know that पहला introduction होगा, and for every question you are going to write separate paragraph. Clear? And finally followed by conclusion. But here, writing the introduction or thesis statement is one of the most trickiest part. इसलिए tricky है क्योंकि आप जब thesis statement लिखते हो तो ये दोनों सवाल का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है. मतलब यू शुड इंक्लूड आंसर टू बोथ दिस क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन, डू यू थिंक दिस इज अ गुड ट्रेंड, नंबर 1. एंड दूसरा, व्हाट रूल्स शुड चिल्ड्रन फॉलो रिलेटेड टू इंटरनेट एंड गैजेट यूज. यू शुड बी आंसरिंग both these questions. You cannot ignore one of them. आपने एक पे बहुत अच्छी इंग्लिश में लिखा, but if you ignore the other question in your thesis statement, you are not going to end up in getting a good score. So very very important कि आप दोनों questions का thesis statement में involvement कीजिए. तो पहला तो हम लोग टिप्स देखेंगे. दिस क्वेश्चन टाइप इज वेरी ओपन. यू मे आस्क टू रिस्पॉन्ड इन वेराइटी ऑफ वेज. रीड द क्वेश्चंस केयरफुली. जाहिर है देयर विल बी 2 और 3 क्वेश्चंस. मेरे हिसाब से ज्यादातर 2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं. वेरी रेयरली एक बार ऐसा हुआ था 2019 में कि 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे. ऐसे केस में इंट्रोडक्शन लिखोगे आप, एंड फॉर 3 क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू बी राइटिंग 3 बॉडी पैराग्राफ्स एंड फॉलोड बाय conclusion. So here, over here, as I have told you, there are usually going to be 2 questions. So in technicality, you are going to write only 4 paragraphs. The first one is introduction. Second is body paragraph 1, giving answer of question number 1. Body paragraph 2, giving answer of question number 2, followed by conclusion. Now, as you can see, writing your thesis can be tricky for this question type. Just make sure to cover each main point that you will discuss in your body paragraph. For example, a good thesis statement might look like this for the sample thematic question on this chart. मतलब अगर thesis statement देखिए, this is a thesis statement और this is not the first sentence. मतलब paraphrasing हो चुका है. जैसे कि अगर ये है, many children have access to the internet and devices like smartphones even at a very young age. So many children, और आप उसको introduction में ऐसा लिख सकते हो कि currently nowadays there is a huge accessibility of internet gadgets like smartphones, tablets, and many other such devices to the children at a very young age, at a very, from schools.
ऐसा करके आपने एक थीसिस पैराफ्रेजिंग कर दिया. But I am more concerned about the thesis statement because as I have told you, in thesis statement you should give answer to both the questions. तो देखिए, let us take the first one. Sample thesis. Given the importance of technology in every aspect of modern life, it is important that young children gain exposure to the internet and devices. Okay. अब देखिए, दो sentence, there are two colors being provided. First one is the green one and the second color is the purple one. Now, can you tell me green one gives the answer of which question? Number one or number two? Because the question is, do you think this is a good trend? कौन सा trend? कि क्या बचपन से इंटरनेट डिवाइसेस जैसे कि स्मार्टफोन्स, क्या बचपन से उनको एसेस जो अवेलेबिलिटी मिल जाती है, क्या वो सही ट्रेंड है? सो कैन यू सी दैट ग्रीन स्टेटमेंट गिव्स द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, डू यू थिंक दिस इज अ गुड ट्रेंड? आप उसको बैड ट्रेंड भी कह सकते हो, नहीं ये गलत ट्रेंड है. तो हमने उसका आंसर दिया है. ये सेकंड लाइन होगी आपके ऐसे के इंट्रोडक्शन की. गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ. गिवन द इम्पोर्टेंस का मतलब ये हम जानते हैं, इसको हम इसको हम मना नहीं कर सकते कि भाई टेक्नोलॉजी का महत्व हमारे लाइफ में, हर मॉडर्न लाइफ के हर पहलू पे है. इसको हम मना नहीं कर सकते. गिवन का मतलब ये प्रूवन है. इट मीन्स यू डोंट नीड टू अपोज दिस. गिवन का मतलब ये होता है. फिर लिखा है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यंग चिल्ड्रन गेन एक्सपोजर टू द इंटरनेट एंड डिवाइसेस. मतलब हमने जवाब दे दिया, डू यू थिंक दिस इज अ गुड ट्रेंड? तो हमने ये जवाब दे दिया कि हाँ भैया, क्योंकि टेक्नोलॉजी का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है हर पहलू पे, ये महत्व है. इट इज इंपॉर्टेंट दैट यंग चिल्ड्रन गेन एक्सपोजर टू द इंटरनेट एंड डिवाइसेस. तो ये लाजमी है कि यंग बच्चों को एक्सपोजर मिले इंटरनेट और डिवाइसेस का, क्योंकि अगर वो नहीं मिलेगा, आई एम नॉट, इसमें ऐसा लिखा नहीं, लेकिन आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, अगर नहीं मिलेगा तो बच्चा फिर बड़ा होके इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हिम टू यूटिलाइज दिस टाइप ऑफ डिवाइसेस. So this green one gives the answer of this statement, this question. Do you think this is a good trend? I hope you understand this. So green one gives the answer of this question. This is, I am writing a thesis statement, students. So it is very, very important for you to understand. एंड दूसरा स्टेटमेंट क्या था? व्हाट रूल्स शुड चिल्ड्रन फॉलो रिलेटेड टू इंटरनेट एंड गैजेट यूज. फर्स्ट करो उन्होंने, हाँ तो कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए अगर बच्चा छोटी उम्र में इज यूटिलाइजिंग गैजेट्स, तो व्हाट रूल्स शुड ही फॉलो. तो पर्पल में हमने वो रूल लिखा है, प्रोवाइडेड दैट पेरेंट्स मॉनिटर देयर एक्टिविटीज केयरफुली. अगर पेरेंट्स बच्चों की एक्टिविटी को मॉनिटर करे. सो दिस गिव्स द आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन. व्हाट रूल्स? तो रूल क्या हमने फॉलो किया कि बच्चा तभी इस्तेमाल करेगा गैजेट एंड डिवाइसेस इफ पेरेंट्स की निगरानी में वो यूज करता है. तो हम ये कहते हैं कि क्योंकि इंपॉर्टेंस है टेक्नोलॉजी का अपनी लाइफ में, इट इज इम्पोर्टेंट कि बच्चों को ये एक्सपोजर बचपन से मिले. ये जरूरी है, मतलब इट्स ए गुड ट्रेंड. लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि पेरेंट्स उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करे. सो दिस इज द थीसिस स्टेटमेंट, स्टूडेंट्स. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप थीसिस स्टेटमेंट लिखते हो इन अ क्वेश्चन बेस्ड ऐसे, यू नीड टू गिव आंसर ऑफ बोथ द क्वेश्चंस इन योर थीसिस, or your essay is not going to get you enough scores. Is it getting clear, everybody? You can give me you can give me your answer in the chat box that it is clear for you, because ये अगर clear होगा तो we'll be going further. Is it comfortable? So in a thesis statement you are going to give answer of both the questions. Everybody comfortable? Okay, fine, very good. चलिए, so let us go ahead now. So याद रहना है हमें क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक है. In an introduction, what you are going to do is you are going to write the first part. पहला इंट्रोडक्शन में पहला होगा आपका इंट्रोडक्शन में पैराफ्रेजिंग. सेकंड वन इज द थीसिस स्टेटमेंट. अब ये थीसिस स्टेटमेंट आपने लिख दिया, देयर इज नो नीड टू राइट एन आउटलाइन इन द थर्ड लाइन. आप लिखते हो तो चलेगा, बट देयर इज नो टेक्निकल नीड टू राइट द आउटलाइन. क्लियर? सो आपका ये हो गया. लेकिन कहने का तात्पर्य ये था कि अगर क्वेश्चन बेस ऐसे है तो आपने थीसिस स्टेटमेंट में सारे सवालों का जवाब देना है. Is it getting clear? अब लास्ट में when I complete this exercise, when I complete this lecture, I'm going to give you small exercise as well. Clear? Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. Now let us try to understand the structure. कैसे लिखेंगे? So introduction में कैसे लिखेंगे? The paraphrase the question. पहला paraphrase करेंगे introduction में. और this essay will discuss question number 1 and question number 2. So हमने दोनों question को लेना है thesis statement में. Understood? And then followed by body paragraph 1, body paragraph 2, and finally the conclusion. Simple सा logic है, simple सा format है. Important is to write a proper introduction. Now let us try to take an essay.
It is predicted that, what is the meaning of word predicted? ये अनुमान लगाया गया है that robots are going to become increasingly important in our lives. Question number 1, how could robots be used in the future? Question number 2, will this development be a positive or a negative development? I repeat, it is predicted that robots are going to become increasingly important in our lives. Increasingly मतलब आज इंक्रीजिंगली का मतलब ये हुआ कि आज की तारीख में नहीं है, ऐसा नहीं है. आज की तारीख में भी रोबोट्स का उपयोग है, लेकिन भविष्य में ये इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा इंक्रीज होगा, बिकॉज दे हैव यूटिलाइज अ कंपैरेटिव डिग्री. इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट मतलब ज्यादा और इंपॉर्टेंट होगा. अब हाउ कुड रोबोट्स बी यूज्ड इन द फ्यूचर? रोबोट्स का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है फ्यूचर में, नंबर 1. और दूसरा, विल दिस डेवलपमेंट बी अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव डेवलपमेंट? ये जो डेवलपमेंट होगा रोबोट्स का यूज भविष्य में, इज दिस गोइंग टू बी अ पॉजिटिव और ए नेगेटिव डेवलपमेंट? सो दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड एसे, जिसमें आपको दोनों क्वेश्चंस के जवाब देने हैं. लेट मी टेल यू, थीसिस में तो दोनों कवर करना ही है. in body paragraphs also you need to cover both the questions in a fair and balanced manner. अगर आपने ऐसा नहीं किया, you are not going to get the score. Clear? Let us now go ahead. अब let us try to understand. याद रखना पड़ेगा आपको ऐसे को. ऐसे में हमने अगर आपको याद होगा, ऐसे में हमने ये कहा था कि रोबोट्स का भविष्य में ज्यादा उपयोग होगा. अभी उपयोग हो रहा है, लेकिन ज्यादा उपयोग होगा. नंबर 1, कहाँ पे उनका उपयोग हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 1 ये था, याद रखिए. और दूसरा, ये इंक्रीज जो उपयोग होगा रोबोट्स का, क्या ये पॉजिटिव या नेगेटिव डेवलपमेंट है? तो हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं. चलिए कि भाई फॉर एग्जांपल अगर भविष्य में रोबोट्स का इस्तेमाल होगा तो कहाँ हो सकता है? टू रिप्लेस ह्यूमंस इन डेंजरस जॉब्स सच एज आर्मी, फायर फाइटिंग, स्पेस एक्सप्लोरेशन. ये सारी चीजें ऐसी है जो हैजार्डस है. फॉर एग्जांपल आर्मी में जाता है कोई, तो देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी. फायर फाइटिंग में जाता है, स्पेस एक्सप्लोरेशन में जाता है, तो देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी ही मे नॉट कम बैक. आर्मी में गोली लग जाती है, फायर फाइटिंग में अगर ही मे बी doused by fire. In space exploration he may never come back to the earth. So these are all hazardous, dangerous jobs. तो भविष्य में हम ये कर सकते हैं कि बजाय ह्यूमन बींग्स को इस जगह पे डाले, वी कैन सेंड रोबोट्स ओवर देयर. तो हमने ब्रेन स्टॉर्मिंग किया कि चलिए भविष्य में इनका इस्तेमाल ऐसे हो सकता है. दूसरा इस्तेमाल हो सकता है, देखिए, हाउ कुड रोबोट्स बी यूज इन द फ्यूचर? यू कैन ओनली यूज वन. सी, एक चीज याद रखिए कि whenever there are essays wherein there are problems and solutions वाला ऐसे है, advantages and disadvantages है, तो लाजमी ये रहता है कि कम से कम 2 यूज तो बताए. You can also write an essay, complete the essay only by taking these things. This is fine, but I would still recommend कि आप 2 पॉइंट्स तो लीजिए. दूसरा, उसका फायदा क्या हो सकता है शायद इन मेडिसिन, जैसे कि रिमोट सर्जरी में, केयरर्स, जैसे केयरर्स इन एज केयर और हॉस्पिटल्स, जैसे कि यहाँ पे तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इफ यू सी इन कंट्री लाइक कनाडा, इन कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वहाँ पे लाइफ लॉन्गेविटी बहुत ज़्यादा है. यू विल फाइंड आउट पीपल स्टेइंग लिविंग अप टू 80-90 ईयर्स. तो जाहिर है उनको एज केयर में काफ़ी लोगों की ज़रूरत पड़ती है, बट देयर इज अ बिग स्कैरसिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ पीपल. तो हो सकता है कि भविष्य में रोबोट्स उनकी देखभाल के लिए काम कर सके. सो वी कैन यूटिलाइज देम इन मेडिसिन. काफ़ी कबार ऐसा भी होता है, वी कैन यूटिलाइज देम इन सर्जरीज, रिमोट सर्जरीज. फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर कहीं पे बैठा है और रोबोट कहीं पे है, डॉक्टर माइट बी गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द रोबोट टू डू द सर्जरी. So these are 2 possible uses of robots in the future. Number 1, they may be utilized in army, firefighting or space exploration, ताकि human beings की there may be lesser loss of life in this type of hazardous jobs. और दूसरा उनका इस्तेमाल हो सकता है मेडिसिन में, रिमोट सर्जरी के लिए, कैरर्स इन एज केयर हॉस्पिटल्स. सो दिस इज द ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, हाउ कुड रोबोट्स बी यूज्ड इन द फ्यूचर. अब दूसरा क्वेश्चन, विल द इंक्रीजिंग यूज ऑफ रोबोट्स बी ए पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट? पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो हमने ऐसा कहा कि भाई ये तो पॉजिटिव है. नाउ पॉजिटिव कैसे है? तो पीपल वोंट हैव टू रिस्क देयर लाइव्स. जैसे कि अगर हम आर्मी और फायर फाइटिंग और स्पेस एक्सप्लोरेशन में भेजते हैं, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इससे ये होगा कि लोगों को अपनी जान नहीं देनी पड़ेगी. इन आर्मी लॉट्स ऑफ लैक्स ऑफ पीपल डाई एवरी ईयर in the entire world. तो रोबोट्स होंगे तो शायद दे विल नॉट, द पीपल विल नॉट बी रिस्किंग देयर लाइव्स. और दूसरा, प्रेशर विल बी लेसन मतलब कम होना ऑन मेडिकल स्टाफ एंड हेल्थ केयर सिस्टम्स. प्रेशर कम होगा हेल्थ मेडिकल स्टाफ और हेल्थ केयर सिस्टम्स. आपको शायद पता होगा कि अभी कोविड-19 हुआ था इन कंट्रीज लाइक इटली. अभी तो काफी कम केसेस हो गए, इटली, फ्रांस, स्पेन. उसमें इतने सारे लोग इन्फेक्ट होते थे हर रोज. The entire medical system was overwhelmed. Overwhelmed का मतलब होता है कि there are more patients
इन कंपैरिजन टू द नंबर ऑफ डॉक्टर्स। तो फर्स्ट कीजिए उस टाइम पे अगर रोबोट्स होते तो ऑल दिस पीपल वुड हैव बीन टेकन केयर ऑफ। आपको शायद ये भी पता होगा, डॉक्टर्स बोल रहे थे कि दे हैड टू टेक अ डिसीजन कि किसको जिंदा रखा जाए, बिकॉज दे कैन नॉट टेक केयर ऑफ एवरी पेशेंट इन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। फर्ज करो अगर रोबोट्स होते तो शायद हम काफी लोगों की जान बचा सकते। तो दिस इज द बेसिकली इसका ये फायदा रहेगा मेडिकल और हेल्थ केयर सिस्टम में। क्लियर? सो दिस आर द टू ब्रेनस्टॉर्मिंग वी डिड। पहला, हाउ कुड रोबोट्स बी यूज्ड इन द फ्यूचर, हमने उसके बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, आर्मी, फायर फाइटिंग, स्पेस एक्सप्लोरेशन में, या और फिर मेडिसिन में भी। और इससे ये पॉजिटिव ट्रेंड हो गया या नेगेटिव ट्रेंड? हमने बोला पॉजिटिव ट्रेंड होगा, बिकॉज इससे लोगों की जान हम बचा पाएंगे एंड देयर विल बी लेस प्रेशर ऑन द मेडिकल स्टाफ एंड हेल्थ केयर सिस्टम। नाउ लेट अस ट्राई टू यूटिलाइज द इंट्रोडक्शन। अगर हम इसको बिल्कुल बारीकाई देखिए, हाउ आई एम राइटिंग द थीसिस स्टेटमेंट, ये सब चीज देखिए। तो क्वेश्चन क्या था? इट इज प्रेडिक्टेड दैट रोबोट्स आर गोइंग टू बिकम इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट इन अवर लाइव्स। हाउ कुड रोबोट्स बी यूज्ड इन द फ्यूचर? Will this development be a positive or a negative development? Clear? Okay, now I'm going to write the first statement, the thesis statement. Clear? अब हम क्या करेंगे, सॉरी पैराफ्रेजिंग, आई एम सो सॉरी, पैराफ्रेजिंग लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, दिस एंटायर जो है इसको हमें पैराफ्रेजिंग करना है। इट इज प्रेडिक्टेड दैट रोबोट्स आर गोइंग टू बिकम इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट इन अवर लाइव्स। इसका हम पैराफ्रेजिंग करते हैं। मैंने पहले भी बताया था, इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट का मतलब ये होता है कि अभी की तारीख में तो इनका उनका महत्व है, लेकिन भविष्य में ज्यादा महत्व होगा। सो आई एम राइटिंग, नाउअडेज robots are already a part of our lives and experts predict that they will become even more prevalent in the coming years। तो वही तो हुआ कि रोबोट्स आज की तारीख में भी हमारे लाइफ में दे आर टेकिंग एन एक्टिव पार्ट इन अवर लाइफ। बट एक्सपर्ट्स ये मानते हैं, प्रेडिक्ट मतलब मानते हैं, कि दे विल बिकम इवन मोर प्रीवलेंट। प्रीवलेंट मतलब दे आर गोइंग टू बी यूजफुल, दे आर गोइंग टू बी पॉपुलर, दे आर गोइंग टू बी डोमिनेंट, दे आर गोइंग टू बी पिवोटल, दे आर गोइंग टू बी वेरी 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 पार्ट एंड वेरी वेरी बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर लाइफ। तो उसको बोलेंगे प्रीवलेंट। तो यही चीज है, हमने थीसिस पैराफ्रेजिंग किया। नाउअडेज रोबोट्स are already a part of our lives and experts predict that they will become even more prevalent in the coming years. Up the most important part, students, the thesis statement. thesis statement में मैंने पहले भी बताया था, you are going to take care of both the questions. पहला question, how could robots be used in the future? तो हमने लिखा है, I believe that robots can be used in hazardous jobs. Hazardous का मतलब होता है dangerous. Is it getting clear? जहाँ पे there can be a big issue to the humanity, to the human life. That is what we call as hazardous jobs. तो जैसे कि हमने बात की थी, आर्मी है, फॉर एग्जांपल स्पेस एक्सप्लोरेशन है, फायर फाइटिंग है, उनको आप हैजार्डस जॉब्स कह सकते हो। सो व्हाट आई डिड इज, आई बिलीव दैट रोबोट्स कैन बी यूज्ड इन हैजार्डस जॉब्स एंड मेडिकल फील्ड इन द फ्यूचर। दिस स्टेटमेंट, एंड के पहले, एंड को मैंने डार्क किया है, एंड के पहले वाला स्टेटमेंट है, इज गिविंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हाउ कुड रोबोट्स बी यूज्ड इन द फ्यूचर। आई होप इट इज अंडरस्टूड टू यू। क्योंकि जब क्वेश्चन बेस ऐसे आता है तब आप इस चीज का इस्तेमाल करोगे, आप दोनों क्वेश्चंस का जवाब एक ही थीसिस स्टेटमेंट में लिखोगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एन इफेक्टिव थीसिस स्टेटमेंट वुड बी ए थीसिस स्टेटमेंट जो एक ही स्टेटमेंट में दोनों क्वेश्चंस का जवाब दे। मैं चाहूंगा आप उसके लिए दो थीसिस स्टेटमेंट, दो क्वेश्चन के लिए दो थीसिस स्टेटमेंट न बनाए। वो आपकी इनएफिशिएंसी बरकरार वो बताती है, सरफेस करती है कि भैया इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना नहीं आता। सिर्फ एंड कर दीजिए, यू कैन यूटिलाइज दिस एंड करके यू कैन गिव द आंसर ऑफ द सेकंड वन। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, विल दिस डेवलपमेंट बी अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव डेवलपमेंट? तो हम ये मानते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम इसको पॉजिटिव डेवलपमेंट मानते हैं। तो हमने छोटा सा यहाँ पे लिख दिया, एंड दिस डेवलपमेंट विल बी अ पॉजिटिव वन फॉर ह्यूमैनिटी। तो ये जो है, ये दूसरे क्वेश्चन का जवाब देता है। आई होप इट इज अंडरस्टूड टू यू स्टूडेंट्स, बिकॉज writing an introduction was the purpose of my today's lecture in a question based essay. सो आई रिपीट, जब क्वेश्चन बेस ऐसे आता है, आप पहला लाइन जो इंट्रोडक्शन का लिखोगे इज गोइंग टू बी पैराफ्रेजिंग, और दूसरा जो थीसिस स्टेटमेंट होगा, उस थीसिस स्टेटमेंट में आप बिल्कुल ये ध्यान रखेंगे दैट यू टेक केयर ऑफ बोथ द क्वेश्चंस इन वन स्टेटमेंट। दिस इज हाउ एन इफेक्टिव इंट्रोडक्शन यू आर गोइंग टू राइट इन ए क्वेश्चन बेस ऐसे। तो यहाँ पे हमने दोनों चीजों का जवाब दे दिया। क्लियर और नॉट? श्योर? ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू सी द बॉडी पैराग्राफ। अब बॉडी पैराग्राफ देखते हैं। तो हमने याद है, हमने कहा था वी डिड ब्रेनस्टॉर्मिंग, जिसमें हमने कहा था कि वो जॉब्स और कहाँ पे इस्तेमाल हो सकते हैं, हैजार्डस जॉब्स में और हेल्थ केयर में। तो यहाँ पे लिखा है, या यहाँ पे लिखा है
Sir, can we? Yeah, I'll just answer to all the questions. Probably at the end of the this session. I hope this is understood. Okay. Okay. The two main usages of robots are in dangerous jobs and healthcare. तो हमने क्या कर दिया, दोनों यूजेज, दो यूज कौन सा है, डेंजरस जॉब्स और हेल्थ केयर. अब लेट अस टेक द फर्स्ट वन. Currently it is humans that are sent to war or to fight fires or explore space. अभी की तारीख में हम ह्यूमंस को भेजते हैं वॉर पे, फायर फाइटिंग के लिए या स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए. इन द फ्यूचर दिस टास्क कुड बी परफॉर्म बाय रोबोट्स. इज इट गेटिंग क्लियर? तो अब भविष्य में हम चाहते हैं और होगा ऐसा कि ये सब चीज है वो रोबोट्स कर सकती है. In addition to such roles, robots could also become more commonplace. Commonplace is a very nice word. कॉमन प्लेस का मतलब, अब अगर जहां पे कॉमन चीज का इस्तेमाल, जहां पे कॉमन वर्ड का इस्तेमाल करते हो, वहां पे आप कॉमन प्लेस भी इस्तेमाल कर सकते हो. इट्स अ वेरी नाइस वर्ड, इट्स अ वेरी फॉर्मल वर्ड. सो आई रिपीट, इन एडिशन टू सच रोल्स, robots could also become more commonplace in hospitals and aged care facilities. For instance, अब एग्जांपल दे रहे हैं हम लोग. देखिए, एग्जांपल दोनों चीजों का जरूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू गिव एन एग्जांपल ऑफ for I mean this has dangerous jobs wala. You can give example of any one of them. You can give example of they being utilized in healthcare or in dangerous jobs. Either of these two is fine. जैसे कि इस केस में हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया इसका. So for instance, they could be used to perform surgery in remote locations, and as artificial intelligence advances, they may also be able to interact with and support patients when nurses or carers are in limited supply. Okay, हमने क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया? ये इसलिए किया कि फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही आदमी बात कर सकता है. देखिए, रोबोट्स जो है वो तो क्या होगा, पड़ी हुई चीज को उठा के इस तरफ रखेगा, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो सही मायनों में आदमी से इंटरेक्ट कर सकता है. आपने शायद वो मूवी देखा होगा रोबोट. तो रोबोट में क्या था कि ही वाज बेसिकली नोइंग द इमोशंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, बिकॉज देयर वाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट वाज एम्बेडेड इन द सिस्टम. सादा रोबोट होगा वो तो काम करेगा, फॉर एग्जांपल इवन कंप्यूटर इज अ रोबोट. बट इन अ वे, इफ यू आर हैविंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो पेशेंस, अगर पेशेंस बोलता है भाई मेरे से बात कर, तू मेरे को अभी अकेलापन महसूस होता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रोबोट्स मरीज से शायद बात भी कर सकेगा. तो ऐसे केस में अब जब आदमी बूढ़ा होता है, देयर इज नो वन टू टेक केयर ऑफ हिम, काफी लोग ऐसा बोलते हैं मेरे साथ बात करने वाला नहीं है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रोबोट्स उनके साथ बात भी कर पाएंगे. तो इसलिए तो यहाँ पे लिखा है कि फॉर इंस्टेंस दे कुड बी यूज्ड टू परफॉर्म सर्जरी इन रिमोट लोकेशंस, एंड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांसेस, मतलब जब बढ़ेगा, अभी नहीं है शायद, लेकिन जब बढ़ेगा, they may also be able to interact with and support patients when nurses or carers are in limited supply. जो फॉरेन कंट्री में ऐसा ही है. Indeed, such developments are already underway. अभी की तारीख में भी ऐसे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जहां पे नर्सेज और कैरर्स कम है. रोबोट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीड करके मरीज से बात करने का भी समझाया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है. So this body paragraph gives the answer of our first question. कौन सा क्वेश्चन? कि where are robots going to be used in the future. Now एक छोटी सी चीज आपको याद रखनी है. You need to understand कि इस बॉडी पैराग्राफ में आपको एडवांटेजेस, इससे ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है और नेगेटिव डेवलपमेंट है, तो याद रहे ऐसा ना हो जाए कि यहाँ पे आप उसका ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट यहाँ पे ही लिख दो, अदरवाइज तीसरे पैराग्राफ में गड़बड़ हो जाएगी. सो लीव दैट फॉर द थर्ड पैराग्राफ, क्योंकि इसका पॉजिटिव है या नेगेटिव हमने यहाँ पे अभी किया कि भाई इसका इस्तेमाल हो सकता है. ये पॉजिटिव और डेवलप नेगेटिव है उसका यहाँ पे हमने उल्लेख नहीं किया है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, वरना होगा क्या, हौच-पौच हो जाएगा. यहाँ पे ही पॉजिटिव डेवलपमेंट डाल दोगे तो तीसरे पैराग्राफ में क्या लिखोगे. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ कहाँ उनका उपयोग हो सकता है, ये लाइन खींचना बहुत जरूरी है. ये अनुभव आता जाएगा आपको, तब पता चलेगा कि इसको कैसे करना है, वरना यहाँ पे पॉजिटिव लिख दोगे, थर्ड पैराग्राफ में कुछ यूनिक नहीं रहेगा और सब कुछ हौच-पौच हो जाएगा. बैंड्स कम हो जाएंगे, 7 के सीधे 5 5.5 हो जाएंगे. क्लियर? ओके. अब बात करते हैं पैराग्राफ 2 की, जिसमें हमने ये कहना है कि ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है या नेगेटिव डेवलपमेंट. तो उसमें यही क्या है, बात वही है, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे कि इससे पॉजिटिव डेवलपमेंट क्या है. तो क्लियरली दिस डेवलपमेंट्स इन रोबोटिक्स एंड एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आप लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म्स वैसे अलाउड नहीं है, बट यहाँ पे जस्ट ये वर्ड का शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो. इट विल हेल्प, इट विल गिव एन आइडिया टू द एग्जामिनर कि इसने इसका पैराफ्रेजिंग किया है. Okay, so clearly this developments, advancements in robotics and AI will have a positive impact on society. अब कैसे? तो लिखते हैं, by outsourcing hazardous tasks, human workers will be less prone. What is the meaning of less prone? Less prone मतलब कम होने की संभावना. Less prone का मतलब less susceptible, less likely,
यू नो ये सब चीज का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ह्यूमन वर्कर्स विल बी लेस लाइकली, प्रोन का मतलब लेस, प्रोन का मतलब लाइकली, सो ह्यूमन वर्कर्स विल बी लेस लाइकली और लेस प्रोन टू इंजरी और डेथ, ये उसका फायदा बताया। इफ रोबोट्स आर एबल टू एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना, फायर्स और डिसार्म, डिसार्म बॉम्ब्स का मतलब बॉम्ब जो एक्टिव है उसको आप इनएक्टिव कर देते हो तो उसको आप बोलोगे डिसार्म एफिशिएंटली, सोसाइटी टू विल बी सेफर। इससे फायदा ये होगा कि ह्यूमन बींग्स, अगर रोबोट्स ये सब चीज कर सकेगा तो सोसाइटी काफी सेफ हो जाएगी। और दूसरा फायदा क्या था इन द हेल्थ सिस्टम में, उसका हमने बताया था कि इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो उसमें ये कैसे पॉजिटिव डेवलपमेंट है, तो लिखा है in the health sector the demand for healthcare workers exceeds का मतलब वो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई इन मेनी प्लेसेस, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, ये एग्जांपल दे सकते हो आप। You can very well give this example in developed countries like Australia and Canada where the longevity of the people is higher than developing or underdeveloped countries, there is a scarcity of healthcare workers, ऐसा आप लिख सकते हो, you can give an example। तो लिखा है इन द हेल्थ सेक्टर द डिमांड फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स एक्सीड सप्लाई इन मेनी प्लेसेस, कॉमा विच मीन्स दैट देयर इज अ डायर नीड, डायर का मतलब होता है एक्यूट, बहुत तीव्र, डायर नीड फॉर एक्स्ट्रा हेल्प। दिस डिमांड कुड वेल बी मेट बाय रोबोट्स विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द डिकेड्स टू कम। अभी क्या हो रहा है कि दिस डिमांड, जो बहुत डिमांड है, ये डिमांड को पूरी करेगा रोबोट्स विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द डिकेड्स टू कम, आने वाले दशकों के लिए, दशकों में, डिकेड्स का मतलब दशक, टू कम। इज इट गेटिंग क्लियर? सो हमने प्रॉपर 2 पैराग्राफ लिखे। फिर पैराग्राफ नंबर 1 वो इसमें ऐसा लिखा था उनका फायदा कहाँ होगा भविष्य में, यहाँ पे हमने पॉजिटिव और नेगेटिव डालिए, फायदा पॉजिटिव है कि नेगेटिव इसका हमने इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन दूसरे पैराग्राफ में, मतलब बॉडी पैराग्राफ 2 में, we mentioned how they can be utilized, whether this is positive or negative. And finally the conclusion, again conclusion में भी ट्राई कीजिए कि दोनों चीजों का इस्तेमाल करें। जैसे हमने थीसिस स्टेटमेंट में दोनों क्वेश्चन का जवाब दिया था, आपने कंक्लूजन में भी दोनों क्वेश्चन का जवाब देना है, दैट विल बी एन इफेक्टिव कंक्लूजन। तो हमने लिखा है इन कंक्लूजन देयर आर एम्पल, एम्पल का मतलब होता है बहुत ज्यादा, एम्पल बेनिफिट्स ऑफ रोबोटिक्स इन द फ्यूचर, दिस इंक्लूड रिप्लेसिंग ह्यूमंस इन प्रिकारियस, प्रिकारियस का मतलब होता है अनसेफ। जैसे कि फॉर एग्जांपल देयर इज अ मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड 300 रन बनाए थे पाकिस्तान ने और इंडिया का फॉर एग्जांपल अभी 5 विकेट गिर गया है 50 रन में, देन वी कैन से इंडिया इज इन प्रिकारियस सिचुएशन। प्रिकारियस का मतलब अनसेफ, क्योंकि हो सकता है हम हार जाए। सो दिस इंक्लूड रिप्लेसिंग ह्यूमंस इन प्रिकारियस ऑक्यूपेशंस एंड सेविंग देयर लाइव्स, क्योंकि हमने लिखा था कि दिस इंक्लूड रिप्लेसिंग ह्यूमंस इन प्रिकारियस ऑक्यूपेशंस एंड सेविंग देयर लाइव्स एंड ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। 2 चीजों पे होता है प्रिकारियस ऑक्यूपेशंस, मतलब कौन से ऑक्यूपेशंस आपको याद होना चाहिए, कौन से, एक तो फायर वाला था, फिर वो आर्मी वाला था और स्पेस एक्सप्लोरेशन वाला था, क्योंकि वो डेंजरस ऑक्यूपेशंस है। एंड सेविंग द लाइव्स एंड ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन फॉर एनहांसिंग द हेल्थ केयर सिस्टम। एनहांसिंग का मतलब उसको उजागर करना, बढ़ावा देना, उसकी वैल्यू को बढ़ाना। एनहांसिंग द हेल्थ केयर सिस्टम मतलब ये हमने, ये जो कंक्लूजन का ये यहाँ सिस्टम तक जो है, we have given the answer of the first question and this is definitely a positive trend for the society। तो हमने कौन से सवाल का जवाब दिया, क्योंकि क्वेश्चन दूसरा ये था कि क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव ट्रेंड है, एंड दिस इज डेफिनेटली अ पॉजिटिव ट्रेंड फॉर द सोसाइटी। बेहतरीन ऐसे होगा ये, इससे ये फायदा होगा, हमने क्या किया, थीसिस स्टेटमेंट में दोनों चीजों का इस्तेमाल किया, फिर उनको अच्छी तरह से समझाया, एंड फाइनली इन कंक्लूजन we wrote a proper conclusion by including both the parameters। so this is how the entire essay would look like। ये पूरा essay आपको लगेगा, you can take a screenshot of this essay। अगर लेक्चर होगा तो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी तो आई विल सेंड इट टू यू, बट इन केस इफ द वीडियो रिकॉर्डिंग में टेक्निकल एरर के कारण नहीं आ पाता, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द सोसाइटी, सॉरी ऑफ दिस स्क्रीन, एंड दिस विल हेल्प यू आउट प्रॉपर्ली। अगर आपको भविष्य में इफ यू वांट टू recollect what sir has taught, you can very well do that। clear? so this is how the entire essay is going to be written। okay। वल्नरेबल का मतलब होता है जो ऐसा हो, ससेप्टिबल और वल्नरेबल दोनों एक है। ससेप्टिबल और वल्नरेबल का मतलब होता है सेम, आई एम वल्नरेबल टू कोल्ड, मतलब मुझे कोल्ड होने की संभावना ज्यादा है, आई एम प्रोन टू कोल्ड। तो यू कैन यूटिलाइज दिस, लेस वल्नरेबल, यू कैन यूटिलाइज दिस, प्रोन के बदला वल्नरेबल का इस्तेमाल कर सकते हो। एनीवे, सो दिस बिकम्स द फर्स्ट पैराग्राफ एज आई हैव टोल्ड यू, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज कंक्लूजन। ओके,
Now I'm going to give you a small exercise. और मैं चाहूंगा, yeah, any questions, any doubts, students? Unsafe, yeah, exactly. Okay, now I am now going to teach you, explain you. अगर आप कर सकते हो तो ऐसा कर सकते हैं. What you can do is, ये दो क्वेश्चंस है. मैं चाहूंगा आप अगर लिख सकते हो, आई एम गोइंग टू गिव यू 3 मिनट्स. मैं 3 या 4 मिनट दूंगा. मैं चाहूंगा आप इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन को पढ़े. एंड इफ इट इज पॉसिबल यू कैन टाइप द इंट्रोडक्शन. अगर आप इंट्रोडक्शन लिखते तो कैसा लिखते. आई वांट द आंसर्स फ्रॉम योर एंड. आई एम गोइंग टू गिव यू 3 मिनट्स. मैं सिर्फ बोलता रहूंगा और आप सुनते रहेंगे, ऐसा नहीं चलेगा. यू ऑल्सो हैव टू गिव मी द फीडबैक. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू ट्राई अ प्रॉपर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू ट्राई अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन. याद रहे, एज आई हैव टोल्ड यू, इंट्रोडक्शन में क्या करना है. द फर्स्ट इज गोइंग टू बी द पैराफ्रेजिंग, and second one is going to take the thesis statement, is going to take care of both the questions being asked. So I'm going to give you 3 minutes, 3 to 4 minutes. Your time starts now. आप चैट बॉक्स में अपना आंसर, मतलब आप अपना इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं शांति से, प्लीज. I'm going to give you 3 to 4 minutes. I want everyone to try at least. Your time starts now. प्लीज डोंट रन अवे. ये करना है. मैं देख रहा हूँ जितने पार्टिसिपेंट्स है एक भी कम नहीं होना चाहिए. आई एम नॉट गोइंग टू देन एडमिट देम इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो भाग मत जाना. Take any one of these essays. जो नहीं लिख सकते वो भी रहे, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि हाउ इट कैन बी रिटन. प्लीज डोंट गो अवे. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट to know how the introduction in this type of essay could be written. ट्राई इट आउट. एटलीस्ट आप नोटबुक में प्रयत्न कीजिए. आपने प्रयत्न किया तो भी बड़ा मजा आएगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Yes guys. क्या बात है. I got the first answer. Okay. Yes, I am getting answers from few of you. किसी ने दिया है, ये रिंकल ने दिया है. Then there is an answer from Darshan. राजेंद्र is trying. राजेंद्र, आपका thesis statement नहीं है. I cannot see your thesis statement.
Okay. Yes, Swapnil. One of the good ideas is giving training to students for how can they become good students. Okay, okay. I believe that is a good suggestion. Okay, Swapnil, what you have done is I can see your this answer, but what you have done is divided the thesis statement into two parts. I told you before also, you only need to write two sentences in your essay, introduction, in question based essay. The first one is going to be paraphrasing. देखिए, when you write a paraphrasing, everybody, तो आपने क्या करना, you just need to, sorry, okay, in paraphrasing what you need to do is you just need to take care of this. जब आप paraphrasing करते हो, so you need to only take, yeah, I can see a lot of answers popping in. आपने paraphrasing सिर्फ इतना ही करना है. देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आप देखिए कि paraphrasing आपको इसका नहीं करना है. You don't need to do paraphrasing of this one. Clear? So it is important to understand कि paraphrasing आप सिर्फ यही स्टेटमेंट का करेंगे और इसमें इस पैराग्राफ में इसी स्टेटमेंट का पैराफ्रेजिंग करेंगे. And in the thesis statement you are going to take this as the first one and this as the second one, लेकिन एक ही सेंटेंस में होगा. I hope it is clear to everybody. Paraphrasing इसका नहीं करना है, पूरा इसका नहीं करना है. You don't need to do the paraphrasing of this one. Okay. Now I can see answers are coming in very good. I'm very happy in the current days. Let me take one by one. Okay. Okay. Nowadays many people are interested. Very nice. एक मिनट. There are number of Darshan has written a good introduction. लेकिन दर्शन अगर आप लिखते हो कि there are number of reasons, तो आप उसमें reasons बयां कर सकते हो. It is important that एक आध reason दीजिए आप. There are number of reasons why this trend happens. An ideal answer would be to give one answer, one reason. I mean दो reason दो आप, because उससे क्या होगा कि the examiner will come to know कि कौन से reason पे आप पैराग्राफ लिखने वाले हो. So very very important. And I believe that this is a negative tendency. This is a negative trend. That is not a tendency. Okay, ठीक है. Then I have got answers from Rajendra. Swapnil, according to reason, हाँ स्वप्निल का मैंने comment कर दिया. Sweetie, family plays a vital role in everyone's life. Some people consider this is a great. Okay, next. Good try. Rajsri is also written. Okay, Swati, in the current days in the world, it is becoming trend to collect. Okay, लेकिन कहाँ thesis statement आपका? Swati, the thesis statement is missing. In the contempt world, there are few masses who are interested to find their human and this movie. Okay. ये किस लिए कर रहे हैं? जय, यू हैव रिटन, लेकिन जय आपने ये क्यों करते हैं? अच्छा, आप ग्रीडी हो जाते हो उसलिए करते हो. ओके फाइन. देन ओके, आई पर्सनली एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट. नेल्सन ने लिखा है nowadays schools are involving many behavioral science in regular study. This can definitely end up being students in parents in the future. I personally agree with this approach as it is going to teach many skills related to communication with child, matching thought and nursing ideology. Okay, लेकिन नेल्सन, you are not written whether this is describe the skills a person needs to be a good parent. Okay, fine. It is a good. Okay, so this Nelson, your answer is good. Your answer is good. This is almost perfect to the one I wanted. But now, students, thanks for giving the answer. I'm now going to give you. Yeah, somebody's also written. Okay, discovering one's own family history is getting well liked in various parts of the world. According to me, people want to do this because they want to know more about their history. And very nice. Nikhil has given a perfect answer because it covers everything. Nikhil, agar aap chat box dekh sakte ho, this is a very good answer. Drashti has also written, yeah, it's becoming more conservative. Okay, fine. I believe schools are should teach important skills. Okay, very nice. I can see lots of people have tried and I am very very happy. But I would say मैं ये इसमें से सबसे best I am trying to put it over here. मैं सबसे अच्छा जो है ये मैं यहाँ पे रखता हूँ. I am putting it over here just for you people to know कि किसको मैं अच्छा कह रहा हूँ. Okay, let me put it over here. Okay. See, this is a very nice answer. Discovering one's own family history is getting well liked in various parts of the world. ठीक है, तो ये हो गया आपका paraphrasing. This is basically a paraphrasing. Okay, and then according to me, people want to do this. तो इसने जवाब भी दे दिया. Why might people want to do this? So this guy is also giving the answer. People want to do this because they want to know more about history. उनको ये or of their family, and it is a positive development. So I believe this one. Nelson, yours was also good, but this is better क्योंकि इसमें काफी चीजें आ जाती है. It covers what I want. It gives the paraphrasing of the introduction,
and it also helps us to ये दोनों questions का paraphrasing करके दोनों question का thesis statement में involvement है. So this is an ideal. काफी बच्चे जो देख रहे हैं, so this is the beauty of technology. मैं शायद बोर्ड पे पढ़ाता हूँ तो आपसे लिख के वो मैं डिस्कस नहीं कर सकता था जो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ. So it is a blessing in disguise, guys. So ये बहुत अच्छा है. It's a very nice. I would say that this is one of the best. And okay, now I'm going to give my answer. चलिए, पहला. In some parts of the world, it is becoming popular to research the histories of one's own family. Why might people want to do this? Is it a positive or negative development? तो लिखा है, it is becoming more and more common for people to seek information about their ancestors and family history. ये जो चीज है, ये जो है, it's basically a paraphrasing of this. इसका paraphrasing है, ठीक है? अब question number 1, why might people want to do this? I think this is mainly because they want to have fun or learn about how their families have changed through time. तो उन्होंने कारण दिया कि सिर्फ फन के लिए और शायद जानना चाहते हैं कि उनकी फैमिलीज कैसे चेंज हुई. बट आई पर्सनली डिसअप्रूव ऑफ दिस प्रैक्टिस. मतलब ये जो डेवलपमेंट है, इट्स अ नेगेटिव डेवलपमेंट. आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो दोनों चीजें आ गई. आई हैव रिटन अ वंडरफुल पैराफ्रेज स्टेटमेंट, द फर्स्ट वन, and the second thesis statement gives the answer of both the questions that I have got in front of me. A very nice answer. ये भी बहुत अच्छा है. And let me now get you the second one, sir. Some people think it would be a good idea for schools to teach every young person how to be a good parent. Do you agree or disagree with this opinion? Number 1, describe the skills a person needs to be a good parent. तो लिखा है, nowadays parenting is considered a very important role in almost every society. I think that school students should definitely receive parenting training. ये ट्रेनिंग मिलनी चाहिए. And also believe that अब कौन सी skills कौन सी है, देखिए बहुत सुंदर सा लिखा है ये. And also believe एक ही statement है. See, I have a comma in this statement, but still it is a one statement. And also believe that effective communication and teaching. तो हमने skills कौन सी है, देखो the question is skills. So you are asked a plural. एक ही skill से बेहतर होगा कि आप 2 skill बताए. तो यहाँ पे 2 skill है. एक तो है effective communication and teaching are 2 of the most important skills a good parent should have. So it is very important for you people to understand कि ancestor का मतलब होता है पूर्वज. गिरीश, एंसेस्टर का मतलब होता है आपके पूर्वज, आपके फोरफादर्स, आपके दादाजी, उनके भी जो लोग हैं पहले के, they are known as ancestors. Anyway, so see how beautifully this thesis statement has been written. ये पूरी चीजों को इंक्लूड करता है. I think that school students should definitely receive parenting training and also believe that effective communication and teaching, दो skills, देखिए skills है, plural है, तो 2 skills हमने लिए. एक तो effective communication and teaching are 2 of the most important skills a good parent should have. I hope this is the end of the lecture, my dear students. So I hope you enjoyed the lecture and it was informative कि आपको पता चला कि how to write a question based essays. Clear? How was the lecture? By the way, have you understood? By the way, everybody, have you understood? Ancestor का मतलब पूर्वज. या પૂર્વજ मतलब आप તમારી પહેલાના લોકો, તમારા પપ્પા છે, એમના પપ્પા એ પૂર્વજ કહેવાય. Clear? Okay. I hope it is understood. I'll take a lecture like this, to next, probably in my next session. Probably I'm planning to take a lecture on Sunday, most probably, if time permits. But thank you all for, remaining present in the lecture. एक चीज याद रखें, students, that see, IELTS may open at any time. The IELTS, ऐसा शायद सुनने में आया कि अब on 15th, the IELTS may open at any point of time. So it is important that, कि आप ये चीज याद रखें कि अपना ब्रश अप, डोंट मूव अवे फ्रॉम IELTS. अगर आपने फॉर एग्जांपल यू हैव बीन ट्रेनिंग योरसेल्फ फॉर IELTS सिंस क्वाइट अ नंबर ऑफ मंथ्स, काफी ऐसे बच्चे हैं जो मार्च से पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड काफी लोग ने छोड़ दिया बीच में. सर ये ऐसा लग रहा है कि ऐसा लगता था बीच में मार्च और अप्रैल में कि दुनिया खत्म हो जाएगी, सो दे लेफ्ट IELTS. बट ऐसा मत कीजिए, दुनिया वैसी की वैसी रहेगी और आप भी वैसे रहेंगे भगवान की मेहरबानी से. लेकिन IELTS व्हेन इट स्टार्ट्स, देखिए जो स्टूडेंट्स है, मैं इनको ये कहना चाहूंगा कि सितंबर शायद नहीं हो पाता, तो आप जनवरी में इतना लोड होगा that at that point of time जिनका IELTS ready होगा, they will be able to apply. Try to understand. So don't go away from IELTS and don't miss any lecture. Why should you miss any lecture? We are trying our level best to deliver. मैं lecture क्लास में लेता था. I have started taking lectures for you people.
So it is important that you attend these lectures so that you don't go too far away from IELTS. So जब IELTS शुरू होता है, तो you should be the first one to give the examination so that you open your doors for January session, if not for September. So I would recommend to keep practicing in IELTS. When it starts, you will feel कि सर मैंने ये practice छोड़ दी, नहीं छोड़ी होती तो अच्छा होता. ऐसा नहीं लगना चाहिए. Clear everybody? Any questions, any doubts? Okay, thank you so much, students. Thanks for attending the lecture. Bye bye till next time. Thank you so much.